Hello, my dear friends and my little flowers. How are you? Fine? Okay, let us start the foundation course of chemistry. So, as you know that your selected stream is a science stream, so you should know what is science. See, from lakhs of years, human being try to know the secrets of nature. How this nature exists एंड व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ दिस नेचर. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक बिग बैंग हुआ, मतलब कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट होने के बाद ये पूरी जो सृष्टि है, ये सब ग्रहों की गति, उसका अरेंजमेंट, लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ, और ये सब मिनरल्स, वाटर एट्सेट्रा फॉर्म्ड. तो एक बात तो तय है कि बिग बैंग होने से सिर्फ इतना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता है, उसके पीछे कुछ सीक्रेट्स होते हैं. तो व्हाट आर द सीक्रेट्स? जैसे कि हमने ये खोज निकाला कि पानी सिर्फ पानी नहीं है. द वाटर इज द मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, यू नो वेरी वेल. वन इज द हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज द ऑक्सीजन. And not only hydrogen and oxygen, but they combined systematically. Two hydrogen combined with one oxygen and water is formed. Another question arises, how this water exists in nature? What is the shape? And finally, by research, it was concluded that water is angular in shape. Between hydrogen, oxygen and hydrogen, देयर इज़ अ एंगल. जब मैं ये समझा रहा था तो एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर ये वाटर एंगुलर है, तो जब हम लोग पानी पीते हैं तो वो गले में क्यों नहीं अटक जाता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मेरे प्यारे बच्चों, ये फ्लेक्सिबल होता है एंगल, ऐसे अटक नहीं जाता. तो जैसे आज हमारे पास एसी है, फ्रिज है, ठीक है, ये सिस्टमेटिक बारिश होती है. आप लोग कुछ सोइंग करते हो, मतलब फार्मिंग करते हो, तो 3-4 दिन के बाद अंकुर फूट बाहर निकल आते हैं. ये सब क्या है? इस नेचर का ये सीक्रेट जानने के लिए एक स्ट्रीम है, उसको बोलते हैं साइंस स्ट्रीम. उसको अगर मैं 1-2 सेंटेंस में फ्रेम करने की कोशिश करूं तो it is a systematic knowledge for describing and understanding the nature. Then the question arises, why should I know? Why should we know these things? After all, everything we should know for the betterment of human being. हालांकि ये बात और है कि हम लोग एटम बम भी बनाते हैं, या अभी जो वायरस का प्रॉब्लम है, इसको हम अभी साइड पे रख देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव साइड ऑफ द ह्यूमन बीइंग. इसके बारे में एज ए साइंस स्टूडेंट हमें नहीं सोचना. तो साइंस का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज टू डिस्क्राइब समथिंग. जैसे मैंने आपको वाटर का एग्जाम्पल लेके समझाया, आई एक्सप्लेन यू. Like that, so many lakhs of chemicals are there, lakhs of minerals are there in nature. फिजिकली, केमिकली, मैथमेटिकली, सबको सिस्टमेटिकली समझना, इसका एक स्ट्रीम जो है उसको बोलते हैं साइंस स्ट्रीम. द साइंस discipline is further divided into 4 disciplines. First is the chemistry, second one is the physics, third one is biology, fourth one is geology. उसमें से हम लोग डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द केमिस्ट्री. I repeat again, science discipline further divided into 4 disciplines, and among them one discipline, chemistry, is further divided into so many disciplines, but in 11th and 12th standard
we have to study about the four types of chemistry. First one is the physical chemistry, second inorganic, third organic, fourth one is the analytical chemistry. And as the scope of chemistry increases in a 21st century, some new branches came into exist regarding chemistry, and these branches are polymer chemistry. One lesson is there in 12th standard about polymer chemistry. Another one is the marine chemistry. Nowadays lot of scope is there in marine chemistry, and you know very well in a modern situation how much important is the medicinal chemistry. Another one is the industrial chemistry. Then environmental chemistry is also good one branch. Most important and recent branch is a green chemistry. Means green chemistry explain us how to reduce pollution during the manufacturing of different chemicals in manufacturing units. And another one is the biochemistry. तो ये मैंने जो अदर ब्रांचेस केमिस्ट्री के लिखी है उसमें से हम पॉलीमर 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे, और एक चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का, वो हम 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे. और ये सब मिला के हाउ केमिस्ट्री इज यूजफुल इन आवर एवरीडे लाइफ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, हम जो करते हैं अगर हमारी लाइफ में इसका कोई यूज़ नहीं है तो करने का कोई मतलब नहीं है. तो आप जहाँ पे जा रहे हो अगर उस जगह के बारे में आपको पता नहीं है तो जो आपको उसका आनंद आना चाहिए, उसका अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, वो नहीं होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग रिगार्डिंग केमिस्ट्री कंसेप्ट्स, I want to explain you in reality what is chemistry is. So in brief course of chemistry, I have listed 3 or 4 definitions of chemistry here. So first is the very simple definition, and that is the study of the material present in a universe. इस यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट है आपके आसपास, जैसे आप सुबह उठ के शाम को सोते बिस्तर पे जाए तब तक आप जितना भी केमिकल्स यूज़ करते हो, ठीक है, खाना है, ब्रश है, साबुन है, ठीक है, आप जो कपड़े पहनते हो इज ऑल्सो द कॉटन, सेल्यूलोज. तो वो सब मटेरियल का जो स्टडी करना है जिस ब्रांच में, और जो भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है, नॉट ऑन अर्थ माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, all this we have to study. It is called chemistry. थोड़ा मैं डिटेल में जाऊँ, डेफिनेशन को इवैल्यूएट करूँ, ये थोड़ा शॉर्ट है. ये डेफिनेशन 1 का इवैल्यूएशन है डेफिनेशन 2. तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन. मैं एकदम इजी एग्जांपल लेता हूँ. कंपोजिशन मतलब कि see in water, what is present in water? Which elements are present in sulfuric acid? Which elements are present in glucose, in sucrose, in amino acid, in DNA, in hemoglobin? Okay, to know the composition and how this exists, the structure. सॉलिड है तो स्ट्रक्चर कैसा है, लिक्विड है तो स्ट्रक्चर उसका कैसा है, वो 3 डायमेंशन में नेचर में कैसे एग्जिस्ट होता है, ये सब जान लेने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. माय फ्रेंड्स, इन केमिस्ट्री देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो किसी भी चीज़ को आप देखते हैं तो कैसी लगती है, उनका स्टेट कैसा है. इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आइदर इट इज अ सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, solubility in water or solubility in other solvent. केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं तो वो दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करता है. जैसे कि कोई एसिड उसमें डाल दो
तो क्या रिएक्शन होगा, बेस डाल दो तो क्या रिएक्शन होगा, कोई गैसेस उसमें डाल दो तो क्या रिएक्शन होगा. तो ऑल द रिएक्शन systematically how these reactions happens in either in laboratory or in industry of all matters, ये सब डिटेल में स्टडी करना उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं. थर्ड डेफिनेशन देखिए तो वो उससे थोड़ा बढ़िया है. सो द थर्ड डेफिनेशन इज chemistry, you know very well, it is a branch of science in which we have to study the composition. Already I discussed with you properties, I discussed with you structures, I discussed with you. और एक नई बात मैंने यहाँ ऐड की है, जो मैटर का हम कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स हम स्टडी करते हैं उसमें कुछ चेंजेस आ सकता है. लेट मी एक्सप्लेन यू बाय वन एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स. जैसे कि पानी है तो पानी को आप लोग बदल सकते हो क्या? वाई नॉट, श्योर. उसको आप ठंडा करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. उसको गर्म करोगे 100 डिग्री सेल्सियस तो वेपर हो जाएगी. पानी में अगर आप कोई एसिड डालते हो तो पानी एसिडिक हो जाता है. अगर आप उसमें बेस डाल दो तो बेसिक हो जाता है. शुगर डाल दो तो मीठा हो जाता है. सॉल्ट डाल दो तो वो खारा हो जाता है. व्हाट हैपन्स इनसाइड, अंदर जाके देखना है सिर्फ, ठीक है. और एक गाना आता है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा. इट इज वन टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी. हालांकि वो फिल्म का गाना है, लेकिन पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, दैट इज वन टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी. Isn't it interesting? Very interesting. और ये कैसे होता है, अब डेफिनेशन को फिर से एक बार देखिए. ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी हैव टू स्टडी द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर एंड चेंजेस ऑफ मैटर अंडरगोस अंडर डिफरेंट कंडीशंस. जैसे कि पानी को आपको आइस में कन्वर्ट करना है तो कंडीशन फ्रीजर में रखना पड़ेगा, मीन्स टेम्परेचर वी हैव टू लोअर. अगर आपको वेपर में कन्वर्ट करना है देन टेम्परेचर इज 100 डिग्री नियर अबाउट. फॉर ऑल केमिकल्स, टू ट्रांसफॉर्म वन केमिकल टू अनदर केमिकल, कोई ट्रांसफॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस होता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना पड़ता है. जैसे कि हमारी बॉडी फ्रॉम बर्थ टू डेथ ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है डिफरेंट कंडीशन में. अगर आप अच्छे मूड में हैं तो आपका अंदर का जो केमिकल रिएक्शंस है, मतलब आपका अपीयरेंस है, आपका बिहेवियर है, अलग होगा. अगर आप मूड में नहीं है तो अलग होगा. तो योर बिहेवियर इज अकॉर्डिंग टू कंडीशन. लाइक दैट ऑल केमिकल्स दे हैव देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. एक डेफिनेशन एकदम छोटी जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, वो केमिस्ट्री इज नथिंग बट, आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स. लाइक दैट सिंपल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी, ये फोर्थ कोई बुक में नहीं है, इज आई हैव रिटन अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग दैट chemistry is a chemical mystery of 118 elements of our periodic table. ये कुछ नहीं है, पूरा केमिस्ट्री जो है वो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट. कोई किसी के साथ शादी कर लेता है, कोई किसी के साथ दुश्मन बन जाता है, किसी के साथ वॉर हो जाती है, और ये सब चलता ही रहता है. और डिफरेंट केमिकल्स इन नेचर, इन लेबोरेटरी बनते रहते हैं. कितने बनते रहते हैं? लॉट ऑफ क्रोर्स ऑफ केमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी. अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ मेरे प्यारे बच्चों. केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, हालांकि टर्मिनोलॉजी इतनी नहीं है लेकिन हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं. तो एज ए स्टूडेंट of chemistry,
यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। हालांकि आप जानते हो, फिर भी मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। एटम, मोलिक्यूल, कंपाउंड्स, मिक्सचर, मैटर। ये मैटर का स्पेलिंग गलत है, या डबल टी आता है, ये MATTER ऐसे लिखना है, ये थोड़ी गलती हो गई। इसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो पूरे 2 साल में हमें ये डिस्कस करना है। सम बेसिक टर्म्स है जो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आ चुके हो, एसिड, बेस, सोल्ट, पीएच, पीओएच। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने लास्ट में लिखा है, ये सब का जो बेस है मैं, तो आपका नॉलेज अबाउट पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पे ही पूरी केमिस्ट्री डिपेंड है। द कंप्लीट केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेबल। जिसका पीरियोडिक टेबल अच्छा, उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी। तो इन केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज द गीता ऑफ केमिस्ट्री। तो ये थोड़ा मेरा सिंपल, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू what is our subject that we are going to learn. और एक चीज़ कि हम लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं करते जिसमें हमें कोई फ़ायदा ना, तो करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे उसका डिस्कशन करेंगे। स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, आप ज़रा सोचिएगा। केमिस्ट्री के बारे में मैं बार बार एक स्टेटमेंट बोलता रहता हूँ कि नो लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। Forget about past it is history. Forget about future because future is mystery. कभी आपके सामने फ्यूचर आता नहीं है, बट द वेरी मोमेंट इज केमिस्ट्री। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ केमिस्ट्री आप काम में नहीं लेते हो, सुबह से लेकर शाम तक। ये कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में आप जो सिलिकॉन चिप्स यूज़ करते हो, तो ये सिलिकॉन आप देखिए ग्रुप नंबर 14 में दूसरे नंबर का एलिमेंट है ये सिलिकॉन। एंड विदाउट चिप्स, चिप इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर कैन रन, सिलिकॉन। हेल्थ, इसका तो कहना ही क्या, ऑल ड्रग्स आर नथिंग बट केमिकल्स। उसके बाद आप देखिए तो शेल्टर, सीमेंट ले लो, ब्रिक ले लो, आप पीओपी करते हो, ठीक है, और कोई भी एलिवेशन, मेटल का, नॉन मेटल, सॉरी मेटल का, गैल्वेनाइज आयन का, सब केमिकल है। ये 3 एरिया। उसके बाद आगे चलते हैं तो एग्रीकल्चर में आप फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हाइब्रिडाइज्ड सीड्स we are using, they are nothing but chemical. In everyday life, for our essential, for our comfort, we are using, हम अपनी सुखाकारी के लिए जितना भी मटेरियल यूज़ करते हैं, देखो आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हो, लोशन, लिनीमेंट, पाउडर, ओके, शैम्पू, सोप, फेस वॉश, ऑल दीज आर नथिंग बट केमिकल। और आगे चलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव। इन मार्केट the foods which are available in a packing, some chemicals are added in it as a preservative like benzoic acid, sodium benzoate, etc. Preservative in food, majority in pickles. Another important thing, petrol, diesel, kerosene, fuel oil, etc. Fuels are nothing but petroleum, and petroleum nothing but hydrocarbon chemicals. Warfare, peace and security are the basic requirement of modern society, remember. So these things are also necessary. Destructive gases, bombs, explosives, dynamite, all are nothing but the chemical. So knowledge about chemistry can construct the life also, can destruct the life also. But as a human being,
We don't have to consider. These are necessary, my friends. Destructive gases and bombs, poisonous gases for our protection. ठीक है, अगर हम अपना प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमको मार देगा. तो ये सृष्टि का नियम है. तो ये वॉरफेयर इज अ नेसेसरी फॉर एनी सोसाइटी. As I told you, peace and security are the basic requirements. तो इतना डिस्कशन करने के बाद मुझे आपको सिर्फ यही समझाना है कि विदाउट केमिस्ट्री लाइफ इज नॉट पॉसिबल. आप कुछ भी ले लो तो आप केमिस्ट्री का यूज़ कर लो. हाँ, उसको कंस्ट्रक्ट करते हो आप फिजिक्स का रूल, जैसे कि आप एसी बनाते हो, फैन बनाते हो, मटेरियल केमिकल, चाहे वो एलॉय हो या मेटल हो या कोई केमिकल, उसमें ग्रीस डालते हो, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर यूज़ करते हो, और वो प्रिंसिपल आप यूज़ करते हो वो कोई फिजिकल प्रिंसिपल होता है. इसीलिए केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो केमिस्ट्री का फिजिक्स के साथ यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. बायोलॉजी के साथ यूज़ करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about the name of element. As a chemistry student, each and every student must know the first 30 elements of periodic table with name, atomic number and atomic mass. I will give you the clue, the memory aid, how to prepare all these elements with name. So that all things we will discuss in our next lecture, and all the terminologies also I have to discuss with you. The step by step we will enter in the test of chemistry. So thank you friends, thank you very much. So in the next lecture we will discuss the next topic of 30 elements of periodic table. Thank you very much.